Oh, is it okay? Absolutely, sir. Are you able to hear me? Yes, Sir, sir. we can hear you. We can hear you. Hello? We'll just wait for 1 minute, then we will start the session. In between there was a echo. So now I can hear you. Can you hear me? I'm not able to see. I can hear you, sir. I'm not able to hear you. Hello? Sir, can you hear us now? So we all can hear you. Hello? Sir, we can hear you. Hello? Bodhankar sir, you're audible. Yeah, okay. Is it okay? Yeah, perfectly okay. But if I get some phone on my phone, then how to, that may distract me, no? Sir, all our guests are here, and let us begin the evening. In the overpowering journey of motherhood, a mom always puts her best to do the best for the children. Now, the mother has many questions, but not enough answers. So today, with one more session of Cover Page Cover Story, I am proud, privileged, and honored to have Dr. Uday Bodhankar. Dr. Uday Bodhankar is the Executive Director of Comard UK, is the Deputy Chairperson CHPA UK, International Council Member of ASPR Japan, Adjunct Associate Professor of Pediatrics in Sydney University, Nodal Officer for RCPCH DCH UK, former Honorable Professor Pediatrics IGMC Nagpur, Honorary Professor of Indian Medical Association India, former Standing Committee Member IPA, former International President ISTP, former National President IAP, and former Member Advisory Council to Government of India. Now, sir, from his busy life of healthcare, do contribute socially with his contribution and special interest with social pediatrics, neonatology, and a lot we are going to hear today. If you want to know more about his life, his journey, a must read is Timiraton Uday Kade. This is penned by Dr. Uday Bodhankar. I'm extremely happy and absolutely honored. With this, I would request Dr. Anuj Rastogi sir, being a neonatal pediatrician and an eminent doctor, a doctor can understand the pain and agony when the mother comes to the doctor and look forward for a quick recovery. And fever is something which is very, very common from the day one of the child in our life and ever after. But today we may be having some insightful session from Dr. Anuj Rastogi and Dr. Uday Bodhankar sir. Over to you, Dr. Anuj sir. Thank you, Deeppanji, and good evening, everyone. And let us welcome Dr. Uday Bodhankar for the session. And I am feeling fortunate to interview him for fever management for children. He's such a legend, and it is my good luck to talk to him about the fever here. फीवर हमारे बच्चों में क्योंकि बहुत ही कॉमन है और छोटे बच्चों में खासकर, बड़े लोगों में तो फीवर 20-20 साल हो जाते हैं होता ही नहीं है। अगर आप किसी 50 ईयर ओल्ड और 60 ईयर ओल्ड आदमी से बात करें तो वो बताएंगे हमें तो 20 साल हो गए, फीवर हुआ ही नहीं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन, इट इज वेरी वेरी कॉमन, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 3.5 ईयर और 4 ईयर ऑफ एज। फीवर इज वेरी वेरी कॉमन। तो एक जनरल इंसाइट हमें फीवर का डेवलप करना है आज की टॉक के बाद, ये समझना है कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब हमें टेस्ट कराना है। और मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबको यही समझाना चाहूंगा
व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट पूछने से या फोन पे ट्रीटमेंट पूछने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फीवर का ट्रीटमेंट इमीडिएटली डॉक्टर बच्चे को देख के कस्टमाइज करते हैं। बिना बच्चे को देखे कोई भी ट्रीटमेंट बताना इम्पॉसिबल है। और कई बार वो इतना जियो पैराडाइज हो जाता है, इतनी सोशल एम्बरेसमेंट हो जाता है डॉक्टर के लिए, जब पेरेंट्स पूछते हैं वो क्या जवाब दे उस बात का, कि या क्रोसिन सिरप बताना है, पैरासीटामोल बताना, ये तो आप जानते ही हैं। जब आपको बच्चा सिक लग रहा है, ज्यादा सीरियस लग रहा है, तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना होगा या इमरजेंसी में ले जाना होगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज की जो टॉक है ये डिसाइड करी गई है। सर, गुड इवनिंग सर। Good evening, good evening. Sir, what is the importance of fever in less than 3 month old child, and Yeah, how should we go about this, sir? yeah. At the outset, let me thank Mr. Tripathi sir, respected Dr. Anuj Rastogi sir, who is the best author. I am the best mom, and Ajinga Dalal for giving me opportunity to talk on a very simple subject but very difficult to understand by parents. So we are going to talk. Am I audible? Hello? We can hear you. We can hear you. Please continue. The moment you said to run your slide, I will play. Okay. So Anuj bhai, sorry. Yes, sir. I think there was double this thing. So you asked me एक क्वेश्चन पूछा आपने 3 महीने के नीचे बच्चों को. I think before going into logistic of understanding, I would like to share with your permission, Anuj Sai, some slide to understand what is fever, how to take fever, and what are the thermometer. So our main objective जो है, जो पेरेंट लोग हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ. और मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो है मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल. इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है. Bringing down temperature to normal range is not the target. Degree of fever does not correlate with the severity of illness. Take home message. And first habit, as Anuj is a very rational pediatrician, discontinue all the medicine unless they are very important, including antibiotic and no empiric antibiotics or anti-inflammatory drug. अनुज भाई यूजुअली लोग एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक जैसे यूज करते हैं. सो दैट मैसेज आई वांट टू गिव. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आफ्टर दैट आई थिंक नेक्स्ट वन कॉमन मिसकंसेप्शन जो है फीवर मैनेजमेंट में वो अपन देखेंगे पेरेंट के लिए. यूजुअली दे आर कंसर्न विद नीड टू मेंटेन ए नॉर्मल टेम्परेचर and they administer antibiotic even at a minimal or no. मेरे को even you'll be surprised अनुज भाई कितने डॉक्टर का भी फोन आता है, सर इसके बच्चे को 100 फीवर है तो बच्चों को बुखार की दवा दो क्या. you'll be surprised कि अरे भाई 101 तक टेम्परेचर जाने दो unless he has got febrile seizure. So you will be surprised 50% ऐसे लोग हैं कि जो लेस देन 38 डिग्री को फीवर समझते हैं और दे गिव एंटीबायोटिक और लेस देन 37.8 also. So you take home message is that don't wake up the child in night unless he has got 101 degree temperature or unless he is uncomfortable. You are giving antibiotic to make him comfortable, not for discomfort. And you will be surprised that even more than 50% of the parents or even doctors, I will say, they give incorrect doses of antibiotic because they don't know the weight of the child. पता बच्चे का वजन कितना है फोन पर सर होगा 10 होगा 12 होगा 15 होगा. तो वेट ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट है. तो सभी ने वेट ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट रहना चाहिए. उसके मुताबिक अपन डोज जो देते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी रहता है. तो केयर गिवर शुड अंडरस्टैंड दैट डोजिंग शुड बी बेस्ड ऑन द वेट rather than age or height of the fever, and they are likely to give incorrect dose. Next one. इसके बाद अपन देखेंगे कि एक्चुअली हम डॉक्टर लोग जैसा दोस्तों की तरह हम कौन से बीमारी फीवर में आते हैं. तो इफ यू डू द एनालिसिस हमको रोज जो देखते हैं 50-60 पेशेंट एवरेज. एवरी पेडियाट्रिशियन सीज एवरेज 50 to 100. सम वर बिजी मे सी मोर बट यूजुअली नॉट मोर देन 30 to 50 शुड बी सीन. तो उसमें ऐसा देखा गया है यूजुअली मोस्ट ऑफ द फीवर आर वायरल, some of them are bacterial, some may present with atypical जैसा ठंड लग गई ये क्या shivering क्या तो मलेरिया. some may have UTI also, some may have cough bacteremia or some may have immune added fever so with rash. So just to tell you in nutshell कि how we as a pediatrician as a practitioner general we come to diagnosis along with fever some symptomology. Next one.
Sir, I am cutting you short. Excuse me, sir. हाँ Hello, sir. Excuse me. हाँ रस्तों की बोलिए। हाँ सर, देखिए अभी तक की जो 3 स्लाइड दिखाई हैं सर ने, उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिए गए हैं पेरेंट्स के लिए। एक तो हाँ जी 100.4 से नीचे फीवर नहीं समझना है। बिल्कुल 100.4, 99 फीवर को आप फीवर कहते हैं। 99 एक जनरल टेम्परेचर है, और टेम्परेचर वेरिएशन पूरे दिन में 1 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। एक बात बराबर आपने बताई कि दवाई जो बुखार का जो ग्रेड है, सीवियरिटी है, वो दैट डज नॉट मीन कि वो बहुत सीरियस फीवर है। एक बात और सर ने बताई कि अननेसेसरी दवाई नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं और बुखार की दवाई जो बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से नहीं देनी है। आपको ज्यादा बुखार लग रहा है तो ज्यादा दवाई दे दी। हम बच्चे के वजन के हिसाब से उसको दवाई देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप बुखार की दवाई की डोज उससे जरूर लिखवा लें, और उसको अपने पास संभाल के रखें, ना कि इसको एक इमरजेंसी बनाएं, अपने पास बुखार की दवाई रखें। प्लीज सर कंटिन्यू। Yeah, thank you. Thank you, Anuj bhai, for giving a take home message at the end of this slide. So बाद में this is technical slide है, इसमें एक ही take home message है। Why fever we call is a friend. Fever is beneficial immune response, important है। Fever is protective immune response to exogenous and endogenous pathogen। इतना बाकी ये स्लाइड में पढ़ने के लिए ने वो पेडियाट्रिशियन के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, वो कैसा फाइट करता है इन्फेक्शन को, कैसा फीवर इज अ गुड थिंग। फीवर आने से आपको समझता है कि अंदर में बैक्टीरिया वायरस घुसा है, तो फीवर इज दैट वे इज अ फ्रेंड, डोंट टेक इट एज एनिमी। दिस इज व्हाट इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड। नेक्स्ट वन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनुज भाई और ऑल पेरेंट्स, विच टेम्परेचर लोग बोलते हैं हम कौन सा लेना चाहिए। जैसा पहले जमाने में मर्क्यूरी थर्मामीटर था, मैं जब बचपन में जब बच्चा था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मर्क्यूरी थर्मामीटर लेके उसको नीचे लाओ, फिर मुंह में रखो या एक्जिला में रखो, फिर उसके डेंजर भी थे, तो इसलिए मर्क्यूरी थर्मामीटर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, nobody should use it. Now remain digital thermometer, which is not more than 50 to 100 rupees. So I will recommend all parents to have minimum weighing machine simple at home, and one thermometer which is there, like, and which is how do you take axillary temperature is important। usually axilla में लेते हैं temperature, that is very important। मुंह में रख सकते हैं, लेकिन मुंह में रखने के लिए 5 साल के ऊपर, उसके नीचे हम एक्सियल टेम्परेचर देते हैं। रेक्टल टेम्परेचर एक्चुअली आप बोलेंगे कि एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर कब होता है, तो यदि आपने रेक्टल टेम्परेचर लिया न्यूबॉर्न में, तो एक्चुअली दैट इज द रियल टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर आपके आजकल जो थर्मामीटर यूज करते हैं फोरहेड पे, वो दोनों में टेम्परेचर मिलता है, और एक है टिम्पैनिक टेम्परेचर जैसा नीचे। तो ये तीनों में एग्जैक्ट टेम्परेचर बॉडी को टेम्परेचर मिलता है, लेकिन अपने को 0.5 डिग्री ऐड करके एक्सियल टेम्परेचर विल बी वेरी यूजफुल। दैट इज व्हाट ए टेक होम मैसेज। इसमें देखिए आप, ये चार्ट है फीवर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। नॉर्मल में कैसा होता है, रेक्टल में कैसा होता है, जैसा ये बाद में एक्सिलरी कैसा होता है, ये चार का डिफरेंसेस बताया। इनमें 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। रेक्टल में यदि टेम्परेचर आपका 36 होगा, तो ऊपर में 0.5 डिग्री वेरिएशन रहेगा ओरल में, एक्जिला में। तो इतना ही रखना कि रेक्टल लेने से थोड़ा डेंजर रहता है, इंजरी होती है, इसलिए वी डोंट टेक रेक्टल टेम्परेचर। वी यूजुअली टेक होम मैसेज इज एक्सिलरी टेम्परेचर लेना और डिजिटल थर्मामीटर। नेक्स्ट वन प्लीज। ये देखो यहाँ दिखा, ये एज ओल्ड थर्मामीटर है जो अभी आउटडेटेड है। मर्क्यूरी से इंजरी भी होती है, डैमेज भी होता है, मर्क्यूरी से टॉक्सिन पॉइजन भी होता है बच्चे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिजिटल वन, विच इज इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज। अनदर इज टिम्पैनिक, कॉस्टली है, 1500-2000 में मिलता है। और ये आजकल जो मिल रहा है टेम्परेचर लेने में आजकल लेते हैं फोरहेड पे, वो लेकिन दैट इज फॉर मास स्कैनिंग। आई विल एडवाइस यू टेक होम मैसेज इज ओनली डिजिटल थर्मामीटर। अनुज सर प्लीज। यस सर। देखिए सर ने बताया है कि थर्मामीटर कई तरह के थर्मामीटर हैं, और जिसमें मोस्ट एक्यूरेट रेक्टल थर्मामीटर से आता है, मतलब पॉटी के रास्ते से थर्मामीटर लगा के, बट वो थोड़ा सा कम्बरसम है और थोड़ा सा कई बार नुकसान भी कर सकता है। तो दूसरे थर्मामीटर मरकरी वाला थर्मामीटर हो गया, या डिजिटल थर्मामीटर हो गया। मरकरी का थर्मामीटर सर ने बताया 4 साल से ऊपर के बच्चे की जीभ के पीछे लगाना होगा, जीभ के नीचे, और कम से कम 3 मिनट तक लगाना होगा। अगर आप उस जगह डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं तो 1 मिनट तक लगाना होगा।
और आप पूरा पक्का कर लें कि कोई बच्चे ने आधा घंटा पहले कोई गर्म पदार्थ या ठंडा पेय पदार्थ तो नहीं लिया है, क्योंकि वो जी, टेम्परेचर बराबर। को प्रभावित कर सकता है। जो अदरवाइज जो सबसे अच्छा थर्मामीटर रहेगा वो एक्सिलरी थर्मामीटर रहेगा, मतलब जो बगल से नापते हैं। और ये ध्यान रखें, इन पे जो टिप बनी हुई है सेंसर कहलाता है, ये सेंसर एक्सिला के अंदर जाना चाहिए, ना कि ये थर्मामीटर एक्सिला से बाहर निकल जाए। जनरली क्या करते हैं हम, ऐसे बगल में लगा लेते हैं और जो बाहर निकल जाता है ये सेंसर, तो टेम्परेचर ठीक नहीं आ पाता। डिजिटल थर्मामीटर तकरीबन 1 मिनट के अंदर टेम्परेचर मुंह के अंदर सेंस कर लेता है। अगर आप बगल में लगाते हैं तो 4-5 मिनट लगा रहने दें, तब आपको एक्यूरेट थर्मामीटर से पता चल जाएगा। और जितने नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर हैं ये कोविड टाइम के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज इनका जो टेम्परेचर मेजरमेंट है उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि कांटेक्ट थर्मामीटर्स का होता है। तो फिलहाल बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, जैसे सर ने बताया, डिजिटल थर्मामीटर बेस्ट है, जो महंगा भी नहीं होता, जो सभी लोगों के घर में होना चाहिए। Thank you. Thank you. Anuj, there is some request on this. Sir, Mohammed Ansari, sir, can you please show us the slide prior to ideal thermometer image slide for 2 seconds, please. तो ये अपन अभी लेना कि बाद में लेना? बाद में दिखा देंगे सर, बाद में दिखा देंगे। बाद में। तो नाउ यू कैन सी अंसारी साहब आपको दिखाएंगे वो। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस इज द समरी टेक होम मैसेज। यू कैन टेक द फोटोग्राफ और स्क्रीनशॉट और अनुज साहब दिखाएंगे। इसमें देखिए एज लिखा है, बर्थ टू 2 ईयर में आइडियल रेक्टल है, बट वी डोंट डू एक्सिलरी स्किनिंग इज इम्पोर्टेंट। 2 से 5 साल भी एक्सिलरी है और 5 साल के ऊपर ओरल, इतना लो। ये ब्लू लिया ना, एक्सिलरी एंड ओरल। ओरल वी यूजुअली डू आफ्टर 5 ईयर, बिकॉज कभी चबाते हैं, कभी दांत आते हैं, कभी तोड़ सकते हैं। मर्क्यूरी तो यूज नहीं कर सकते 5 ईयर के नीचे। यू कैन यूज डिजिटल थर्मामीटर। तो टेक होम मैसेज, बर्थ टू 5 ईयर्स एक्सिलरी, more than 5 years oral thermometer. Yeah, over to Anuj, please. यस सर। सर ने बताया कि 5 साल से नीचे एक्सिलरी थर्मामीटर, मतलब बगल में थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर लें, और 5 साल से ऊपर मुंह के अंदर थर्मामीटर लगा के लें। जो एक कान वाली जो 2 जगह टिम्पैनिक लिखा हुआ, टिम्पैनिक वर्ड यूज होता है कान के पर्दे के लिए। कान के लिए। अगर कान के पर्दे से भी उतना एक्यूरेट नहीं आता, और उसके लिए आपको जो ईयर कैनाल है उसको कान को ऊपर को खींच के सीधा करना पड़ता है बच्चे का, तब Yeah. जाके उसमें टेम्परेचर ठीक से मेजर हो सकता है। तो इतना सब फैंसी चीजों की जरूरत नहीं। एक्सिलरी थर्मामीटर बच्चा अपनी मदर से खूब आराम से लगवा लेता है, क्योंकि वो अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है, माँ को पहचानता है। हाँ, डॉक्टर से नहीं लगवाएगा वो। तो आप बच्चे को एक्सिलरी थर्मामीटर लगाइए, वो चीप एंड बेस्ट है। ये फैंसी थर्मामीटर लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू अनुज जी। एक्चुअली एक्सिलरी टेम्परेचर लेने में थोड़ा बच्चे लोग रोते हैं, मुंह में तो डाल नहीं सकते 5 साल तक। ऐसे होकर टिम्पैनिक में वो बोला है कि वैक्स रहता है, कभी ये रहता है, इन्फेक्शन रहता है, पस रहता है। तो उन्होंने बोला कि इवन ये लेने के बाद भी टिम्पैनिक बराबर, लेकिन चीज महंगा है। और जैसा अनुज सर ने बताया, टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट रहता। उससे अच्छा आजकल तो इंफ्रारेड आ रहा है टेम्पोरल, वो अपना फ्रंटल में, वो दैट विल बी easy, but it is expensive. So best way take home message is auxiliary thermometer, digital one. That is what. Next one. Now if you, now once you know that the child has got fever, तो अभी उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आपने देखा थर्मामीटर कौन सा यूज करना, कितना देर करना, अनुज सर ने बताया कैसा यूज करना, कौन सा रूट देना। अभी इसमें 3 चीजें वो अपन जाएंगे नहीं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी उसमें दवा आती है, जैसे एंटीपायरेटिक में नंबर 1 पैरासीटामोल आती है, नंबर 2 आइबुप्रोफेन। एस्पिरिन आती नहीं इसमें। वो सपोर्टिव में टेपिड स्पॉन्जिंग, उसको दूध पिलाना, माँ दूध पिला, ज्यादा दूध पिलाना, पानी पिलाना, ORS देना, वार्ड में क्लीन कूलर काम में लगना। स्पेसिफिक इट इज नॉट फॉर यू, इट इज एंटीबायोटिक एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू सी सिम्टोमेटिक ओनली एंड सपोर्टिव, नॉट स्पेसिफिक। Now, what are the indication of antibiotic use? As I told you, जैसा अनुज सर ने बताया, relief of discomfort and prevention of febrile seizure important है। कई बच्चों में 6 महीने के ऊपर से 6 साल तक बच्चे में 99, 100, 101 गया, तो बच्चों में झटके आते हैं, उसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर।
बुखार में झटके आना। तो ऐसे होगा अपन देन वी डोंट वेट फॉर 101, जिसको हिस्ट्री है फेब्रल सीजर की है झटके आने की, उनको 100-100.5 हो गया तो टेम्परेचर का दवा देना, और इसके साथ भी झटके की दवा जो बाद में अपन डिस्कस करेंगे अनुसार के वो देना इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द इंडिकेशन। नेक्स्ट वन। नाउ नॉन फॉर्मल यानी विदाउट दवा वाली कौन सी चीजें जो आप घर में कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया बच्चों को जैसे खिड़कियां ठंडी नहीं है तो खिड़कियां खुली रखना, एयर रूम रखना, और जो उसके बहुत से लोग क्या करते हैं उसको बराबर अरे उसको बुखार है करके उसको कपड़े में बांध के रखते हैं। कपड़े बांध के मत रखो, उसको खुला रखो। खुला रखेंगे तो, और पंखा यदि होगा छोटा पंखा जैसा मैंने बताया तो पंखे में रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर 102 डिग्री वैसे कम होगा। इसके बाद हाई टेम्परेचर में वाटर लॉस होता है, वाटर ऐसे अगर उसको पानी पिलाओ, ORS पिलाओ, जूस पिलाओ, नींबू शरबत है समझो वो पिलाओ, मट्ठा दो, छाछ दो, घर की दवा बोल रहा हूँ। माँ का दूध है तो माँ का दूध यदि 6 बार तो ज्यादा माँ का दूध देना है, उसका शरीर का पानी कम नहीं करना, उसका हाइड्रेशन बोलते हैं। और थर्डली मैकेनिकल कूलिंग बोलते हैं। आज बहुत से बार अनुज आपने देखा होगा, मेरे को भी, मैं बचपन में छोटा था तो हमारी मम्मी है ये लोगों को अपने सर के ऊपर एक पट्टी रखते थे, ठंडी पट्टी, और बोलते थे कि इसका बुखार कम होगा। तो उस वक्त 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल, तब इतना नॉलेज नहीं था व्हाट इज टेपिड स्पंजिंग। तो सिर्फ आप सर पे पट्टी रखने से नहीं होगा, उसको पूरा नेकेड कर सकते हैं, चड्डी पे रख के उसको पूरा स्पंजिंग जो बोलते हैं वो, और वो कौन से पानी से करना चाहिए? टेपिड स्पंजिंग। टेपिड मीन 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत ठंडा भी नहीं होगा बहुत गर्म नहीं, ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं उसे। हेड सर से लेके तो टोटल 15 से 20, जब तक टेम्परेचर 38 डिग्री तक नहीं आता तब तक 10-15 मिनट अच्छे से, तब फैन बंद कर देना, ठंडी नहीं लाना चाहिए, खुले रखना, और उसको पूरा नेकेड करके चड्डी पे रख के पूरा स्पंजिंग करना, टेपिड स्पंजिंग बोलते हैं। ये टेक होम मैसेज है। बहुत से लोग ठंडा पानी लेते हैं बर्फ का, उससे फिर शिवरिंग होता है, सेंसरी लॉ। तो टेपिड स्पंजिंग मीन ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी, उससे करना, ज्यादा ठंडा भी नहीं और ज्यादा गर्म भी नहीं। यस अनु सर। यस सर। तो इसमें सर ने बताया कि जो बिना दवाई के जो आपको इसमें करना है, एक तो बच्चे को पानी पिलाते रहें, चाहे वो अगर थोड़ा लूज मोशन और वोमिटिंग है तो ORS एक चम्मच करके पिलाएं। अगर लूज मोशन नहीं है तो आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी ले सकते हैं, और एक चम्मच करके पिलाएं। बॉटल में या ग्लास में ना दें क्योंकि बच्चा एकदम उल्टी कर देगा। एक चम्मच करके आप कितना भी पानी पिला सकते हैं उसको। और मैकेनिकल कूलिंग के लिए सर ने बताया कि ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ की पट्टी ना रखें, गुनगुने पानी से सारा बदन पूछें। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप पंखा खोल दें और खिड़की खोल दें, जिससे कि वो पानी ऊपर उड़ेगा और नीचे ठंडक प्रोवाइड करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ठंडे पानी से क्यों नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से आपका टेम्परेचर, तो ठंडा पानी चुभेगा बॉडी को, और ठंडे पानी से बच्चे का बुखार तो उतरेगा थोड़ा, बट उसकी जो खून की नसें, जो खून का दौरान हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी थोड़ा, वो जो नसें श्रिंक कर जाएंगी, और टेम्परेचर जो फॉल होगा वो थोड़े समय के लिए फॉल होगा। और अगर यदि आप गुनगुने पानी से स्पंजिंग करेंगे तो खून की नसें थोड़ा फैलेंगी और टेम्परेचर जो फॉल होगा वो काफी देर के लिए उतरा रहेगा। जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके बाद अपन ये एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ अनुज भाई, कि जो पेरेंट एजुकेटेड रहते हैं दे कैन सी द पल्स। यदि पल्स यदि और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बच्चे का, तो पल्स उसका कम है, यानी नॉर्मली पल्स 80 to 120 रहता है, बच्चे में 100 रहता है। यदि आपको लग रहा कि 60 पल्स आ रहा हो, टेम्परेचर 102-103 है, तो कभी कभी कोई बीमारी में होता है, जैसे टाइफाइड में होता है, बाकी एक बीमारी आपके काम की नहीं, ड्रग प्योर में होता है। और टेम्परेचर ज्यादा है और पल्स भी ज्यादा है, 120 130 जा रहा है, 150 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 200 बात डॉक्टर के पास, तब बैक्टीरियल टॉक्सिन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, सीवियर इन्फेक्शन उसमें होता है। ये जस्ट बताने के लिए, नॉलेज अपडेट के लिए बताया। नेक्स्ट वन। नाउ वी आर सीन अनुज भाई, अपने नॉन फार्माकोलॉजिकल जो घर में कर सकते हैं वो देखा। अभी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिंपल फॉर पेरेंट यूज बता रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है कि आपको पैरासीटामॉल यही यूज करना है। हम जेनेरिक नेम बोल रहे हैं, उसका नाम मेडिकल नेम, कंपनी का नाम वी कैन नॉट टेक, जिसमें पैरासीटामॉल रहता है, या और कभी कभी आइब्रोपेन।
अलग से, लेकिन मेफेनेमिक एसिड यूज नहीं करना और एस्पिरिन यूज नहीं करना, ये टेक होम मैसेज है। कभी भी एस्पिरिन 8 साल के बच्चे या 10 साल वी डोंट यूज मेफेनेमिक एसिड। इतना ही नहीं, जिसमें कॉम्बिनेशन में आइब्रोफेन पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन है, मेफेनेमिक पैरासिटामोल, वो भी यूजुअली वी ट्राई टू अवॉइड। मीन टेक होम मैसेज इज ओनली पैरासिटामोल अलोन और समटाइम आइब्रोफेन अलोन इन द डोज। बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डोज इसलिए बोल रहा हूँ कि इवन फॉरेन कंट्री में, अनुज भाई आपको मालूम है, उनके यहाँ टाइनेलॉल करके नाम है, उसके बॉटल के ऊपर एज वाइज वेट वाइज डोज लिखा रहता है। यानी उसके लिए उनको डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं। वेट ऑफ द चाइल्ड इज नोन, हर एक के घर में वेइंग मशीन रहती है। तो ये है कि आपको 12 साल के नीचे बच्चों को 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, यानी पर डोज यानी 4-4 घंटे में, यदि टेम्परेचर एक्सपेक्ट के ऊपर जा रहा, 4-4 घंटे में जा रहा, तो पैरासिटामोल ऐसी सेफ ड्रग है कि आप 4-4 घंटे में दे सकते हैं या 6-6 घंटे में, जैसी जरूरत है। ये डोज 10 मिनट ज्यादा दिया है तो 15 मिलीग्राम, यूजुअली 10 मिलीग्राम सफिशिएंट होता है। 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम, जैसा 10 किलो का बच्चा है तो उसको 150 मिलीग्राम, यदि ज्यादा टेम्परेचर है तो 15 मिलीग्राम तक यानी ज्यादा जा सकते हैं। ये टेक होम मैसेज है। बाकी इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम डोज इतने डोज बोला था। इसमें एक्चुअली एक सपोजिटरी भी आती है, जो बच्चों में बहुत ज्यादा बुखार रहा तो ये देखो सपाल सपोजिटरी करके आती है, जो बच्चे में उल्टी होती है, ज्यादा बुखार होता, तो ऐसे वक्त हम लैट्रिन के जगह से भी ये डालने के सपाल बेबी सपोजिटरी, वो 80 मिलीग्राम की रहती है, वो ऊपर का निकाल के उसको लैट्रिन की जगह से डाल सकते हैं कभी कभी। तो इसलिए नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी सपोजिटरी मिलती है जो आप देखे होंगे प्लेन में वगैरह, दे डोंट गिव ओरली, दे ट्राई टू गिव यू सपोजिटरी। ये नेक्स्ट वन। और एक ड्रग आइब्रोफेन है, ये भी एक ड्रग अलोन यूज करना है, जिसको 5 to 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज ओनली 3 टाइम्स से दे देना। वो कैसा 4-4 घंटे में दे सकते हैं। इसको आप 8 आवर्ली यानी 3 बार ही दे सकते हैं, एकदम 4 टाइम, लेकिन ज्यादा नहीं देना कभी कभी। दिस इज ड्रग फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, इसलिए बताना चाहता हूँ। यस अनुज भाई प्लीज। अनुज भाई। सर ने बताया कि मेफनेमिक एसिड को नहीं देना है जनरली, क्योंकि मेफनेमिक एसिड देने से बच्चे का जो थर्मोस्टेट है बहुत नीचे आ जाता है और वो बच्चा ठंडा ठंडा हो जाता है। उससे आपको एक कंफ्यूजन भी पैदा हो जाएगा और आप बच्चे को जज नहीं कर पाएंगे कब वो खराब हो रहा है या दवाई से उसका टेम्परेचर बहुत लो चला गया है। तो सबसे अच्छी दवाई पैरासीटामोल है। अगर पैरासीटामोल, सर ने बताया पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन नहीं यूज करें, रादर उसको डिवाइड करके यूज कर लें अगर बुखार नहीं उतर रहा है। जैसे पैरासीटामोल हर 4 घंटे में दे लें और आइबुजैसिक 3 बार दे लें या 4 बार मैक्सिमम दे लें आप। और उससे जब दोनों दवाइयों का लेवल बॉडी के अंदर बन जाता है तो टेम्परेचर जनरली कंट्रोल रहता है, बच्चा कंफर्टेबल रहता है, ओरल इंटेक रहता है, उसको ओरल हाइड्रेशन रखें। और हमेशा ध्यान रखिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर बच्चे को हुआ है तो 5 से 6 दिन लेगा ही लेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस बात से बेचैन ना हो, उसकी जनरल कंडीशन का ध्यान रखें। और 3 दिन में अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो जरूर उसे अपने बच्चे के डॉक्टर के पास तुरंत लेके चले जाएं। यस सर। Thank you, Anuj. Now this is just a preamble of what we have been talking. अभी अपन ने आधा घंटा बात किया. So which fever need treatment? It is not the fever that need treatment, but the associated discomfort with need. ये टेक होम मैसेज की स्लाइड है. Which drugs are appropriate? आपको मालूम है, आप आंसर देंगे पैरासीटामोल. How does one control the fever? If associated with discomfort with only paracetamol. In which clinical situation? जैसा अनुज सर ने पहले पूछा, we will not wait and watch. जैसा उन्होंने पूछा था, अभी आ रहा हूं मैं, 3 महीने के बच्चे जो 3 महीने या 6 महीने के नीचे बच्चे, उनमें सडनली टेम्परेचर बढ़ सकता है और इवन कन्वल्शन भी आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चे में 100 डिग्री भी हो गया और इट कैन रेज इमीडिएटली, तो ऐसे में ज्यादा वेट नहीं करना। पैरासीटामोल 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज पर आवरली 6 आवरली दे सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे HIV और ये, और जो बच्चों में कुपोषित है, माल नरिश यानी कुपोषित है, जिनमें प्रोटीन न्यूट्रिशन कमी है, जो बहुत कमजोर है, उनमें अपन ज्यादा वेट नहीं करते। ये 3 ही कंडीशन बोलूंगा आपके लिए। बच्चा न्यूबॉर्न बेबी 3 महीने से कम या 6 महीने से कम वाला, बाद में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और माल नरिश चिल्ड्रन, ये 3 कंडीशन में आई थिंक इट इज बेटर दैट you don't wait and watch. You can start
antibiotic, and if possible then go ahead with the investigation within 24 to 48 hours. बाकी सब जगह अनुज सर ने बताया मोस्टली वायरल फीवर में 1 से 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं. एंड इफ द बच्चा अच्छा है तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, टेम्परेचर सिर्फ 100 तक लाने की देखिए करिए. अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन. नेक्स्ट वन प्लीज. ये देखो ये इंपॉर्टेंट है अनुज भाई. व्हाट आर आप बोलेंगे सर मेरा बच्चे को आप बोल रहे हैं टेम्परेचर आया वो खाना नहीं, जैसे ABCD ख्याल में रखो. A इज अराउजल, अलर्ट यदि बच्चा है खेल रहा है, जैसा अनुज सर ने बोला टेम्परेचर 101 है तो डोंट वरी, बच्चा खेल रहा है टेम्परेचर जा रहा तो उसको 4 घंटे में 6 घंटे में दवा दीजिए अकॉर्डिंग टू वेट, नॉट अकॉर्डिंग टू एज. वेट वाइज 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, पर जितना आता है. बाद में उसको सांस में तकलीफ हो रही, 3 महीने का 6 महीने का बच्चा फीवर है, सर्दी खांसी है, घर घर कर रहा, तो डेफिनेटली दिस इज ए वार्निंग साइन, यू हैव टू टेक टू डॉक्टर. देन कलर ऑफ द बेबी यानी क्राई, कलर में यदि ब्लू पड़ रहा है, पिंक से ब्लू हो रहा है, क्राई में वीक क्राई हो रहा है, जो अच्छा बच्चा रोता था अभी उसमें वीक हो रहा, या जैसा कन्वल्शन में एक बताना चाहता पेरेंट को, कन्वल्शन बच्चे में जो आते झटके वो मिर्गी वो एकदम से आते नहीं, इसमें आपके इवन आईज में फ्लटरिंग भी हो सकता है, ऐसा कर लिया या ऐसा मुंह टेढ़ा टेढ़ा कर सकता है, या कभी कभी उंगलियां ये कर सकता है. इट इज नॉट फ्रैंक कन्वल्शन इन एज वी गेट इन एडल्ट. तो ऐसा भी हुआ इमीडिएटली दिस इज अ वार्निंग साइन. डोंट वेट एट होम, गो टू एनी डॉक्टर हु इज नियर टू यू, एनी प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके जाइए. और चौथा, यदि वो दूध पी रहा और अभी 2-3 घंटे से बिल्कुल दूध नहीं पी रहा, सुस्त हो गया, तो ऐसे वक्त और उसका यूरिन आउटपुट बता रहा हूँ कम से कम दिन में, यानी आज सवेरे 8 बजे से कल सवेरे 8 बजे या 9 बजे 24 घंटे में कम से कम बच्चों ने 5 बार यूरिन करना चाहिए, 5 बार. यदि उसका यूरिन आउटपुट 12 घंटा हो रहा नहीं हो रहा और दूध नहीं ले रहा है या पी रहा नहीं, तो इसीलिए वार्निंग साइन. जैसा मैंने बताया, चेंज इन लुक एंड एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड नॉट द डिग्री ऑफ फीवर के ओर मत जाओ. 101 डिग्री में भी बच्चा सीरियस हो सकता है, 105 में भी खेल सकता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा दिख रहा है, खेल रहा है क्या, वो बराबर ये कर रहा है कि नहीं, क्राई कर रहा है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, और अलर्ट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये यदि नहीं है तो बच्चा ठीक है. ये ABCD रेड फ्लैग्स एंड आई वुड लाइक टू टेक होम मैसेज. अनुज भाई प्लीज. यस सर. तो सर ने बताया ABCD, इसमें ध्यान रखना है आपको. A फॉर अराउजल, मतलब बच्चा अलर्ट कितना है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, कोई सुस्त तो नहीं हो रहा, पहचान ठीक रहा है, आंखें ऊपर तो नहीं चढ़ा रहा, सांस तो तेज नहीं ले रहा. जनरली क्या होता है, जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पेरेंट्स जज नहीं कर पाते हैं. उन्हें ये जरूर ध्यान रहता है कि इसने खाया नहीं, इसने पिया नहीं, या सोए जा रहा है, ये तो कहते हैं, बट वो सांस की रफ्तार को नहीं समझ पाते. तो मैं सभी को समझाना चाहूंगा, जो थोड़ी के नीचे वाला हिस्सा है, एक तो इस जगह निगाह डालें कि वो यहाँ पे कोई गड्ढा तो नहीं पड़ता है, जो हड्डी है यहाँ नीचे उसके ऊपर कोई गड्ढा तो नहीं पड़ता है. और आप उसका बनियान हटा के देखें तो साइडों में जहाँ पसलियां नीचे हैं वहां कोई गड्ढे तो नहीं पड़ रहे हैं, या तेज तेज तो नहीं चल रहा है. तो ये बड़ा जरूर है ध्यान रखने की जरूरत, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बिल्कुल डर नहीं लगता और वो पहचान नहीं पाते हैं. कई बार बच्चे लेट आते हैं इस चक्कर में और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है. कलर जरूर देखें, उंगली अंगूठे नीले तो नहीं पड़ रहे हैं उसके, और थोड़ा कलर फीका फीका तो नहीं लग रहा बच्चे का. अगर कलर फीका फीका लग रहा है तो भी कुछ हो सकता है कि उसको सीरियस बात डेवलप हो रही हो. पानी उसने पीना छोड़ दिया है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो भी आप ध्यान रखें. प्लीज सभी लोग इस स्लाइड की फोटो खींच लें और ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें. अगर इस बारे में कोई भी आपको सवाल करना है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं. यस सर. थैंक यू अनुज जी. एक्चुअली इसमें 2 चीज बोलना चाहता हूँ. जैसा अनुज सर ने बताया कि इसमें विदिन डिफिकल्टी में क्या होता है, जैसा नॉर्मली सांस लेता है तो जब भी विदिन डिफिकल्टी ऐसा कुछ भी किया तो समझ लेना कि गड़बड़ है. और उसके ये जो नाकपुड़ी है वो यदि फ्लेयरिंग हो रही, या जैसा अनुज सर ने बताया, या गड्ढा पड़ रहा, या आपने ऊपर किया शर्ट तो वो धापना बोलते हैं, या उसको डब्बा बोलते हैं निमोनिया में, कि हमारे विलेज में डब्बा बोले. तो लेस देन 2 महीने में यदि आप काउंट कर सके रेस्पिरेशन रेट, पेरेंट को सिखाया डॉक्टर अभय भंग सर ने गढ़चिरौली में. इवन दाई शी नोज हाउ टू डायग्नोज निमोनिया, इवन पेरेंट नोज. 2 महीने के नीचे यदि उसका 60 के ऊपर जा रहा रेस्पिरेशन, 1 2 3 4 5, तो और 2 से 1 साल में यदि 50 के ऊपर जा रहा है रेस्पिरेशन,
और 1 साल के ऊपर यदि 40 के ऊपर रेस्पिरेशन रेट जा रहा तो पॉसिबिलिटी ऑफ निमोनिया है, तो ये ख्याल में रखना। और दूसरा, जैसा अनु सर ने बताया, डिक्रीज फूड इंटेक के लिए हम यहाँ देखते हैं, ये इसको टालू बोलते हैं, ये टालू खुली रहती है 1 साल तक, 1.5 साल तक, ऐसे 9 महीने। तो ये यदि गड्ढा पड़ गया या बच्चा रो रहा, उसके आंख में आंसू नहीं है, तो इसका मतलब पानी कम हो गया। और तीसरा, जीभ जबान बाहर निकालने को यदि वो निकाल रहा बाहर, रोड ड्राई है यानी सूखी है, गीली नहीं है, तो 3 चीजें और यूरिन आउटपुट कम, ये 4 चीजें ख्याल में रखना, इसमें पानी की कमी हो रही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। थैंक यू। नेक्स्ट वन। इसके बाद जैसे कौन सी कंडीशन आप बोलेंगे कि इसमें अपन अलर्ट रहना चाहिए? नॉर्मली तो आप लाइटली लेंगे, लेकिन दिस कंडीशन जैसे मैंने बताया, अनु सर ने बताया, 3 महीने के नीचे बच्चा जो रहता है, या मैं बोलूंगा 6 महीने तक भी बच्चा रहेगा, उनमें यू हैव टू बी अलर्ट along with ABCD साइन और नॉट। देन जो बच्चों में झटके आने की प्रक्रिया पहले हो चुकी है, 6 महीने से 6 साल तक होती है यूजुअली, दिन में 1 बार होता है, कभी दिन में 2 बार भी आ सकता है, तो सिंपल फेब्रल कॉम्प्लेक्स उनमें। और जैसा मैंने बताया, माल नरिश बच्चे जो है, जिनमें कुपोषित है, अंडरवेट है, अंडर फीड है, उनमें जिसमें प्रोटीन की कमी है, क्वेश्चनर बच्चे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे, प्रोलॉन्ग जिसमें एक हफ्ता हो रहा है, कभी कभी इवन डॉक्टर के बच्चे भी 3 से 5 दिन तक वो आते नहीं, 5-7 दिन के बाद बोलते हैं हमने घर में दवा दिया, एंटीबायोटिक दिया, बाद में आते। तो ऐसे होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड जिसमें बुखार में वजन कम होता है बच्चे में, जो दूध लेता नहीं माँ का, या खाना खाता नहीं, 2-3 दिन में आपका उसका वजन 10 किलो था, और आज आपने 3 या 5 दिन के बाद क्या 9.5 kg हो गया, आधा किलो। तो दैट इज आई थिंक ए वेरी important warning sign, and you have to take it seriously. Don't take it lightly. So take home message. Over to Anuj sir, please. जैसा कि सर ने बताया, अगर बच्चा 3 माह से नीचे का है और अगर उसको बुखार 100.4 से भी ज्यादा आ रहा है, तो आपको उसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला कारण, खासकर नॉर्थ में, यहाँ ठंड के महीने चल रहे हैं, तो लोग कंबल पे उड़ा देते हैं बच्चे को और बहुत सारी लेयर पहना देते हैं, बच्चों का टेम्परेचर उससे भी बढ़ जाता है। तो आप पहले कपड़े हल्के करिए, और अगर 100.4 से ज्यादा फीवर आ रहा है तो उसे आप खुद पैरासीटामोल ना देके डॉक्टर के पास दिखाने ले जाइए। 3 महीने से ऊपर का बच्चा है और 2-3 दिन हो गए बुखार को, और उसका बच्चा देखने में ठीक लग रहा है, आपको एक्टिव है, तो 3 दिन तक अगर बुखार उसका पैरासीटामोल से नहीं खत्म हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाइए। और अगर आपके बच्चे को बुखार में दौरे आते हैं तो भी आपको फौरन दवाई देनी चाहिए, और समय रहते डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार क्या हो सकता है कि जो अगर पहले दिन ही बुखार के दौरा आ जाता है तो जनरली उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती है, और बुखार चलते चलते माना 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर दौरा आता है, तो वो दिमागी इन्फेक्शन का साइन होता है। जो बुखार में दौरे पड़ने, 100 में से 4 बच्चों को बुखार में दौरे पड़ते हैं, परंतु जनरली वो बुखार की तेजी से पड़ते हैं। जब बुखार शुरू होता है और एकदम से तेज होता है तो दौरे पड़ जाते हैं। अगर यही दौरा उसको तीसरे चौथे दिन पड़ता है तो फिर थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो उसको आपको बहुत थोड़ा गंभीरता से लेना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो भी उसके अंदर जो है फीवर कम महसूस होगा और इन्फेक्शन ज्यादा होगा। कोई बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है। सीलियक डिसीज है जहाँ गेहूं की प्रॉब्लम है बच्चों में, वहाँ भी वो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। और कुछ और इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट हैं जो कॉमनली सोसाइटी के अंदर कॉमन नहीं है, तो वो उन पेरेंट्स को पता चल जाता है तो वो और ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपके बच्चे को बुखार चल रहा है तो भी आपको केयरफुल रहना है। कुछ बुखार सीजन्स में भी परेशान करते हैं, जैसे डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर जब होता है तो सभी को पता चल जाता है डेंगू का सीजन चल रहा है। उसमें अगर बच्चा आपका अचानक से ठंडा होने लगे और आपको उसके हाथ पैर ठंडे लगने लगे, तुरंत उसे इमरजेंसी में ले जाके एडमिट कराइए। मैंने देखा है बहुत बार पेरेंट्स उसका घर पे इलाज करते रहते हैं, और ऐसे में कभी भी पैरासीटामोल के अलावा डेंगू सीजन में कोई और दवाई बुखार के लिए ना दें। आप बुखार उतार लेंगे तो आपको उसकी सीरियसनेस का पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसे बच्चे बहुत सीरियस होते हुए और कई बार खत्म होते हुए भी देखे हैं, क्योंकि वो समय घर पे निकाल आते हैं। एक अभी नर्स थी, उनका ही बच्चा, वो पूरी रात घर पे लेके बैठी रही उसको, 14 साल का बच्चा था, और वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला गया। और जब तक वो डॉक्टर्स के पास पहुंचा, जब तक उसमें इलाज करने लायक गुंजाइश ही नहीं बची थी।
हाँ, अगर बुखार के साथ आपके बच्चे का वेट लॉस हो रहा है तो भी सर ने बताया कि वो भी फीवर एक कंसर्न वाला फीवर है, तो ये भी सब आप लोग ये ध्यान रखें। यस सर, प्लीज। थैंक यू अनुज भाई। मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा ये विवेचन किया। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, जिस बुखार में रैश आती है ने पुरल बोलते रैश, जहाँ पर भी पुरल या रैश आती है वहां पर वहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। रैश कैन बी बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, इट कैन बी जैसा डेंगू फीवर बोला, मलेरिया में आती है। और बाकी दोनों से आजकल बहुत लोगों के पास घर में कुत्ता बिल्ली रहती है, तो उससे आजकल ज्यादा बीमारी आ रही है। तो आपको एक ही बोलूंगा पेरेंट को कि जो भी घर में कुत्ता है बिल्ली है उनको थोड़ा अलग रखिए बच्चों से। 5 साल तक बच्चे उनको इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इवन इतना नहीं, विलेजेस में जहाँ पर गाय है भैंस है बिल्ली मुर्गी है बकरी है, वहां पर भी हमने देखा है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यस। हाँ, सर ने बताया कि जितने भी रैश वाले बुखार हैं आप उन्हें सबको खसरा ना समझें, क्योंकि ये देख करीब 25 से 26 बुखार ऐसे हैं जिनके अंदर रैश आता है बच्चों के अंदर, और सभी को खसरा कहना या मीजल्स कहना उचित नहीं है। जो कॉमन बुखार हैं रैश वाले, एक तो एक नया बुखार अब काफी जगह मिलने लगा, स्क्रब टाइफस कहते हैं उसको। समय रहते अगर उसका इलाज ना हो तो बच्चा सीरियस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। दूसरा बुखार है कावासाकी डिसीज, वो भी बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, 1-2 बच्चा हर महीने मिल जाता है। तीसरा जो और बुखार है जिसमें एक स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है जिसके अंदर रैश आ जाता है। इवन गठिया बाई के अंदर भी बच्चों को रैश आता है, इवेनिसेंट रैश आता है, रैश आया चला गया। तो आपका डॉक्टर सब कुछ जानता है, आप अपने आप उसमें स्वयं डॉक्टरी ना करें, रैश आने पे अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जरूर जाएं। थैंक यू। अभी एक ही स्लाइड ये, जैसा अपन ने बताया था टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जैसा हमारे नागपुर है, नागपुर बहुत हॉट है। अभी दिल्ली भी हॉट होता है समर में, अप्रैल मई में। बाहर का टेम्परेचर हमारे यहाँ 40-45 जाता है। ऐसे होगा हाइपरथर्मिया बोलते हैं, जिसमें 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हुआ तो उसके कारण बहुत हीट स्ट्रोक हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ये क्लासिकल तथा उसमें बॉडी बहुत गर्म होती है और टेम्परेचर लेंगे तो बहुत ज्यादा रहता है, 105 डिग्री तक जाता है और झटके भी आते हैं। तो ये जस्ट बताना चाहता हूँ टेक होम मैसेज। एंडोक्राइन में होता है, थायराइड में होता है, ब्रेन हिमोरेज में होता है, मैलिग्नेंट में होता है, कभी कभी दवा ज्यादा लेने से सैलिसिटेट से होता है। तो ये जस्ट एक स्लाइड आई वांटेड टू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया इन एडिशन टू नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 101 102। नेक्स्ट वन। So, would you like to talk on this Anuj, hyperthermia? यस सर, बताइए सर, बताइए। हाइपरथर्मिया के ऊपर आप बोलिए, बाद में मैं these are 2 slides which are carry home message है। You please talk on hyperthermia also. कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हाइपरथर्मिया में। बुखार जो है हाई बुखार के अंदर बच्चों को कई बार बुखार से दिमाग पे सूजन भी आ जाती है, हाइपरपायरेक्सिक एनकेफेलोपैथी हो जाती है और बच्चे एबरेंटली बोलने लगते हैं, जो ऐसी बातें बोलने लगते हैं कभी कि सांप आ रहा है, बिल्ली आ रही है, डरने Yeah, लगते हैं बहुत बुरी तरह। CN दूसरा, बच्चों के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है, और पानी की कमी अगर 5% भी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो 1 डिग्री उनका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, और एक उनमें एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता, पानी कमी होती, पानी की कमी से फिर टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसमें इसमें वोमिटिंग होती है तो सोडियम भी कम होता है, पोटेशियम कम होता है, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, झटके भी आते हैं। तो इनमें जो आपने बोला स्पंजिंग, इसमें हम जैसा पानी है उससे पूरा ऊपर से नीचे तक नहला देते हैं उसको ल्यूकवार्म वाटर या सादा वाटर टेम्परेचर वाला करते हैं। उसका टेम्परेचर 38 तक लाने की आधे 1 घंटे 2 घंटे में करते हैं। इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है। ठीक है। नाउ जस्ट 2 स्लाइड एट द एंड before we go for discussion. Carry home message, नहीं, previous slide, पहली वाली स्लाइड, इसके पहले वाली। हाँ, फीवर नहीं नहीं, इसके बाद, नहीं इसके बाद, आगे 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 आगे, हाँ ये आगे, हाँ बस।
आज हमने बोला, अनुज भाई ने बोला कि फीवर को आप फ्रेंडली समझिए. स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड, लास्ट. तो बुखार को आप एनिमी मत समझिए. इसमें टेक होम मैसेज वही है कि फीवर को आप दोस्त समझिए. बिकॉज फीवर इम्पोर्टेंट नहीं, कब बुखार आता है, कैसा आता है, एग्जैक्ट वो इम्पोर्टेंट है. डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी सिर्फ ऐसे देखते फीवर, अरे गर्म लग रहा है तो गर्म 99 100 में भी लगता है. जब तक आप एक्चुअली टेम्परेचर लेंगे नहीं 5 साल का 100 के ऊपर, तभी बोलना. वो इम्पोर्टेंट मैसेज है. और important message ये है कि paracetamol is the only drug of choice, no other thing, and no antibiotic specially to be given unless the diagnosis. Antibiotic पहले 2-3 दिन में हम देते नहीं, हमने अनुज भाई देते नहीं, most of the pediatrician, क्योंकि हम 1-2 दिन तक यूजुअली वायरल फीवर है, बच्चा अच्छा खेल रहा है, दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, तो ऐसे इसमें हम सिर्फ पैरासीटामोल 4 to 6 hours देते हैं. और जिसको झटके आते हैं उसको झटके की गोली या झटके का ये स्प्रे है, देखो ये स्प्रे नाक में डाल के उसका झटके आने का बंद करते हैं. इसको मीरा स्प्रे बोलते हैं. ओनली जो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम अलर्ट रहते हैं. आपको रेड फ्लैग साइन बताया था. वैसे जो बच्चा 3 या 6 महीने का अंदर है, अगेन मैं बोलूंगा इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जैसा अनुज सर ने बताया, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी डिसीज है, हार्ट डिसीज है, और ब्लड कैंसर है, या कोई बीमारी है, एनीमिया है, हेमोग्लोबिनोपैथी, थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, उसमें थोड़ा एंटीबायोटिक वी कैन स्टार्ट विद इन 48 to 72, नॉट बिफोर दैट. बाकी लोगों में वी कैन वेट अप टू 3 days. और जो बच्चे कमजोर है उनमें उनमें हम यूजुअली वी ट्राई टू डू वर्कअप, जैसे हेमोग्लोबिन पेरिफेरल स्मीयर करके. मलेरिया है तो मलेरिया की दवा देना. एंटीबायोटिक इज नॉट द आंसर. ये टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ कि नाउ टेक होम मैसेज, फीवर कंसिडर फीवर एज आपका दोस्त है करके एनिमी मत समझो. ओनली फीवर वेयर इट कॉजेज कन्वल्शन इज ए वरी. अदरवाइज फीवर में पैरासीटामोल इज द ओनली आंसर. व्हाट इज टेक ऑन. ओवर टू अनुज सर प्लीज. सर फीवर देखिए, जब अब हमारे पास जब इस ब्रीफ के साथ हम डिस्कस करेंगे, जब फीवर वाला बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं उसको क्या वैक्सीनेशन हुआ है. बिकॉज अगर उसके सारे अच्छे वैक्सीनेशन हुए हुए हैं, खासकर छोटे बच्चों में अगर न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा हुआ है, डिप्थीरिया का वैक्सीन लगा हुआ है, हिप का वैक्सीन लगा हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट सेफ हो जाता है. और फ्लू वैक्सीन जो फर्स्ट ईयर में 2 बार दिया जाता है और उसके बाद हर साल 1 बार दिया जाता है, तो उससे हमारी बहुत सारी बीमारी रूल्ड आउट हो जाती है. तो एक डॉक्टर की अप्रोच एक फुल्ली वैक्सीनेटेड बच्चे के लिए और एक नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे के लिए या इनकम्प्लीट वैक्सीनेटेड बच्चे के लिए डिफरेंट हो जाती है. तो उसी आधार पे हम टेस्ट भी कराते हैं. अब जैसे अब टाइफाइड का टीका 6-7 महीने की उम्र से लगना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी वैक्सीन आ गई है टाइफाइड की. तो टाइफाइड इधर नॉर्थ के अंदर बहुत कॉमन है, तो भी हम बेफिक्र रहते हैं. और हम एक बोल्डली, अगर बच्चे का एग्जामिनेशन नॉर्मल है और हमें उसके एग्जामिनेशन में कोई गले के अंदर पस नहीं दिख रहा है, टॉन्सिल के अंदर पस नहीं दिख रहा है, कोई उसकी तिल्ली बड़ी भी नहीं है, तो हम उसको फीवर को पैरासीटामोल से ही कंट्रोल करते रहते हैं. और 5वें-6ठे दिन तक आते आते फीवर सही हो जाता है. तो अगर आपके बच्चे के वैक्सीनेशन पूरे नहीं लगे हुए तो प्लीज उन वैक्सीनेशन को पूरा लगाएं, क्योंकि डॉक्टर को वैक्सीनेशन लगा हुआ होने से बहुत हेल्प मिलती है फीवर के समय डिसीजन लेने में. और अगर आपके बच्चे के टॉन्सिल बहुत बड़े बड़े हैं तो वो बुखार का कारण नहीं होते जब तक कि उनमें पस ना पड़ा हुआ हो. एक अगर आपका बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का बच्चा है और पहली बार उसको फीवर हुआ है, तो और उसके साथ उसे कोई खांसी जुकाम नहीं है और उसका एग्जामिनेशन नॉर्मल है, तो उसका यूरिन जरूर टेस्ट कराएं. ऐसे ही उसको ब्लाइंडली एंटीबायोटिक ना दें. अक्सर ऐसे बच्चों को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन निकल जाता है और फिर उसका जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है. सिर्फ फीवर की वजह से बच्चों को इंजेक्शन लगवाना, एंटीबायोटिक की और एंटीबायोटिक देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने डेंगू फीवर में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, चिकनगुनिया में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, खसरा में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी. जब तक कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता तब तक एंटीबायोटिक कोई फायदा नहीं करती है. तो इसलिए बुखार और एंटीबायोटिक साथ साथ नहीं चलते. जनरल बुखार जो है वायरल है बच्चों के अंदर, तो इसलिए एंटीबायोटिक ब्लाइंडली देना और एंटीबायोटिक दे के खुश महसूस करने से कोई फायदा नहीं है. आप जब ऐसे बच्चे को वायरल इन्फेक्शन वाले को एमोक्सिसिलिन कैल्वोनिक एसिड देते हैं तो 100% उसे डायरिया होगा. आप पता चला आपने जो उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया. अब उसको पहले बुखार ही था, अब उसके साथ डायरिया भी शुरू हो गया, या उसको रैश निकल आया,
ये देखा गया है जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, जब तक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन नहीं होता और आप एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन कैल्वोनिक एसिड जो कि बहुत फेमस एंटीबायोटिक है उसे यूज करते हैं, तो बच्चे को रैश आ जाता है या डायरिया हो जाता है। तो ये सब बड़ा रैशनलाइज है। और प्लीज मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, आप टेलीफोन पे दवाई ना पूछें बच्चों के लिए, और ना ही व्हाट्सएप पे दवाई पूछें, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू आंसर देम। हम आपके बच्चे की जान से खेल नहीं सकते हैं। अब उसके लिए या तो हमें चुप ही रहना पड़ता है या इग्नोर करना पड़ता है आपके मैसेज को। आप हमें रिपोर्ट, आजकल पैनल की रिपोर्ट्स बहुत होने लगी हैं जिसमें 200 200 300 टेस्ट की रिपोर्ट आप करा के अपने आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, वो भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि कोई भी व्हाट्सएप पे उन सब रिपोर्टों को देख के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। जब हम बच्चे को देखते हैं, एक जनरल एग्जामिनेशन होता है बच्चे का, एक बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो हम स्टेथोस्कोप लगा के या थ्रोट से और ये ईयर चेक करते हैं, उसका एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप कोई टेस्ट की रिपोर्ट ले रहे हो तो वो रिपोर्ट उसके साथ कोरिलेट करते हैं। किस किस परिवेश से बच्चा आया वो देखते हैं। पेरेंट्स में ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है, ये भी चेक करते हैं। तो हर तरीके से देख के तब हम सम अप करके कुछ एक डायग्नोसिस दिमाग में सोचते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। ये सब टेलीफोनिक कंसल्टेशन पे या व्हाट्सएप कंसल्टेशन पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ सर आप इस बात से एग्री करेंगे। यस सर, अनुज भाई, आई थिंक रस्तोगी सर आपने बराबर बताया। सबसे पहले टेक होम मैसेज कि आप टेलीफोन कंसल्टेशन अवॉइड करना, या डोज आपको बताया मैंने, डोज यू कैन आस्क somebody, they will give you dose according to the weight। बाद में जैसा सर ने बताया कि इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लसीकरण इंपॉर्टेंट है, जैसा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, पोलियो, ट्रिपल, बीसीजी सब वैक्सीन मिल रही, डायरिया की वैक्सीन, रोटा वैक्सीन भी मिल रही सबको आजकल, डायरिया 9 महीने के पहले। वैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 6 महीने में, और टाइफाइड वैक्सीन जो नई आई है 1 डोज है, वो भी 6 महीने से चालू होता है, 9 महीने में पहला डोज, बाद में बूस्टर डोज की शायद जरूरी नहीं है। तो सभी लसीकरण करिए। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब भी कोई डिफिकल्टी है तो अनुज सर का है, हमारा फोन नंबर है, SMS है, व्हाट्सएप है, आप उस पर ये करके यू कैन टेक ओनली प्रिलिमिनरी एडवाइस, इज नॉट फाइनल, वी डोंट वांट टू प्ले विद द लाइफ। और जब भी आपके नजदीक डॉक्टर उसके पास जाइए। और एंटीबायोटिक का इंडिकेशन जैसे बताया सर ने कि हम कब देते हैं, जब बहुत बड़ा पस हो गया या टॉन्सिल बहुत बड़ा हो गया जिसमें पस दिख रहा, या ग्लैंड उसमें इन्फेक्शन है, या निमोनिया में, या डायरिया में जिसमें ब्लड म्यूकस रहता है, आँख खून, डिसेंट्री, ऐसी बहुत कम चीजें हैं जहाँ पर एंटीबायोटिक की जरूरत है। अदरवाइज वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ पैरासीटामोल देके 4 घंटे में, 6 घंटे में आप उसका ये कर सकते हैं। इफ यू वेट फॉर 2 to 3 days of a child which is playing well and active, feeding well, and no sign of any lethargy नहीं है, उसको convulsion नहीं है, तो you can avoid giving antibiotic to your child even by doctor। ये टेक होम मैसेज है। मैं thank you। We have got some questions on this। Can we take it, अनुज भाई? सर अभी 2-3 चीजें और डिस्कस कर लें। एक तो हाँ प्लीज। एक सारे वर्ल्ड के अंदर एक ये फीलिंग है कि दांत निकलने से बच्चों की तबीयत खराब होती है और बुखार हो जाता है। तो पेरेंट्स में क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे को दांत निकलते हुए बुखार 101 से ज्यादा है तो वो दांतों की वजह से नहीं है। ये तो कोई भी नहीं जानता, थोड़ा बहुत दांत निकलने से इरिटेशन होता है बट माइल्ड इरिटेशन होता है, ये एक मिथ लेकिन है जो डायरिया होता नहीं। एक्चुअली डायरिया जो होता है वो बच्चा मुंह में जो माउथिंग करता है, जैसा ये मैंने लिया, और इसका इन्फेक्शन होगा उससे होता है, वो दांत से नहीं होता, दांत से थोड़ा इरिटेबल होता है, बट दैट्स ए नॉर्मल थिंग, यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन। अगर आपके बच्चे को तेज बुखार हो रहा है तो आप प्लीज दांतों को ब्लेम ना करें और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। यस। और कुछ सेकंड? अच्छा सर, एक ना बच्चे बहुत 6 महीने 8 महीने के बच्चे आते हैं जिनकी हथेली बहुत गर्म होती है और सिर बहुत गर्म रहता है उनका, और पेरेंट्स सोचते हैं उन्हें फीवर होता है, बट जो अगर नापो तो फीवर नहीं निकलता। सर इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये नॉर्मली क्या रहता है, टेम्परेचर जो रहता है बॉडी का, वो टेम्परेचर जो बाहर निकलता है वो यूजुअली सर से निकलता है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि आपका अपन जो हीट लॉस रहता है वो ज्यादा हीट लॉस यहाँ से होता है, जो लार्जर पार्ट एक्सपोज है और हाथ एक्सपोज रहते हैं, बाकी सब बॉडी क्लोज रहती है क्लोथ में। तो पेरेंट लोगों ने यही बोलूंगा मैं, जैसे बताते हैं ऐसा लगाएंगे आपको गर्म लगेगा क्योंकि हीट लॉस यहाँ से होता है। आप जब तक टेम्परेचर लेंगे ना एक्जिला में रख के, डिजिटल होगा तो 1 मिनट क्लिप होगा, या मर्क्यूरी होगा तो 3 मिनट रख के लेंगे, तब समझेगा
100.5 101 टेम्परेचर लेना। तो हथेली गर्म नॉर्मल रहते, ये भी गर्म नॉर्मल रहता है, बिकॉज हीट लॉस होता है। हीट लॉस जहाँ से भी होता है बच्चों का नॉर्मली नॉर्मल रहता है, वो नॉर्मली गर्म ही रहेगा। तो इतना नहीं होना चाहिए कि चटका बैठ रहा, बहुत कोई लोग बोलते चटका बैठ रहा, तो डेफिनेटली वार्निंग साइन है। नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा ल्यूकवार्म रहना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट यदि बहुत चटका बैठ रहा, एकदम सन्नाटा से लग रहा, तो डेफिनेटली वरी है, इतना बोलूंगा। अच्छा सर, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ पेरेंट्स आते हैं कि अभी 15 दिन पहले बुखार हुआ था, फिर बुखार हो गया, 3 महीने से मेरे बच्चे का बुखार नहीं जा रहा है। और हाँ। जब ऐसे डॉक्टर हम उसे एनालाइज करते हैं कि 3 महीने में उसको 5 या 6 बार बुखार हो गया, 5-6 दिन रहा, 2-3 दिन नहीं रहा, फिर हो गया, फिर 2-3 दिन नहीं रहा, फिर हो गया। सर ऐसे में क्या अप्रोच करें और कैसे क्या समझें इस बात से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेरेंट के लिए, इवन फॉर प्रैक्टिशनर, फॉर पेडियाट्रिशियन। इसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। बट बच्चा बीच में ठीक था और उसका वेट लॉस हुआ था कि नहीं था? यदि नहीं, वेट लॉस नहीं होगा, अगर बच्चे का बच्चा वेट ठीक लॉस होगा। नहीं हो रहा है, बच्चे को बुखार होता है, 4-5 दिन रहता है, फिर 2-3 दिन ठीक हो जाता है, या 1 हफ्ता ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो रिकरेंट फीवर को पेरेंट प्रोलॉन्ग फीवर समझते हैं, जबकि ये फीवर अलग अलग कारणों से हो रहा है। पहले या एक्स वायरस से हुआ, फिर वाई वायरस से हुआ, फिर जेड वायरस से हो गया। तो सर कैसे बताएंगे उनको? नहीं, एक्चुअली बीच में यदि बच्चा अच्छा है तो इट इज ए डिफरेंट थिंग। यदि 3 महीने कंटिन्यूस फीवर है, वेट लॉस है 1 महीना, तो डेफिनेटली अलग कारण रहता है। जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर में 15 दिन महीने में विथ वेट लॉस, विथ लिथार्जी, तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस आता है। पहला टीबी आता है, बाद में बाद में अदर इन्फेक्शन जो आते हैं, वो इवन मेलिग्नेंसी भी आते हैं। वेट लॉस बहुत है, पैलर है, एनीमिया है, lymph node गाठी है, तो फिर इवन यू हैव टू थिंक ऑफ मेलिग्नेंट फीवर। अदरवाइज जो ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक तो रहते हैं, वेट फॉल भी तो नहीं मुझे होता लगता है वायरल अटैक होगा 3 से 5 दिन का, बाद में बच्चा ठीक होता है। इसमें सिर्फ एक ही बोलूंगा अनुज जी, उन्होंने हीमोग्लोबिन, हीमोग्राम और यूरिन टेस्ट करना चाहिए, यूरिन कल्चर करना चाहिए। यूजुअली जो बच्चे अच्छे रहते हैं उसमें कुछ नहीं होता। यूजुअली व्हाट आई फाउंड इन प्रैक्टिस, उनको यूटीआई निकलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कल्चर करके एंटीबायोटिक, जब कल्चर आता है 3 दिन के बाद, तब मैं उनको एंटीबायोटिक देता। तो यूजुअली रिकरेंट फीवर जो होता है, जो 2-3 महीने में विदाउट वेट लॉस बच्चा अच्छा है, तो उनमें यूजुअली यूटीआई पाया गया है। जो बच्चे में रिकरेंट फीवर विथ राइगर चील्स आता है, उसमें कभी कभी क्रॉनिक मलेरिया है। ये 2 चीजें बोलूंगा। बाकी सीरियस जो चीजें है, डेंगू है, शॉक सिंड्रोम, लेप्टोस्पायरा, वो यदि उसको रैश नहीं है, तो आई थिंक दिस आर आउट ऑफ क्वेश्चन। जी सर, जी सर। और एनी डियर, अदर? नाउ यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन टू अस। आप कोई भी सवाल हमसे, दीप्तमान कोई क्वेश्चन आए हैं आपके पास तो प्लीज पूछिए सर से। यहाँ एक है, एक अंसारी साहब का था। कैन यू प्लीज शो द स्लाइड प्रायर टू आइडियल सराउंड इमेज और 2 सेकंड। और एक है, सर आई एम सौम्या सिंह इज हैविंग हेडेक समटाइम्स सर, आई कांट एबल टू So जॉइन द अर्लियर सेशन। there are few questions on the chat box. Here the question is: my son always suffer from cold and dry cough, wet, हाँ, and whenever season get change, and he don't eat well as well. Anything to boost immunity? सर इस सवाल को हम अगले वीक में हम कफ पे बात करने जा रहे हैं, तब ये क्योंकि फीवर से रिलेटेड सवाल नहीं है, इसको हम अगली बार इसका आंसर देंगे। Certainly. एलर्जी। One concern and question. Now the children are about to start their physical classes in school, and yes, anytime they are traveling to step, yes, there is a thermal check of these with the help of the thermometer is happening. Now the mother and everybody in family are also just keeping their finger crossed that my child should come back home without having a fever. yeah. So what advice, sir? Anuj ji, I will give advice that because of the second wave which is coming, I am in Nagpur now. So we are very happy till December, but January onward we are facing lot of positive cases. So my advice will be there: if your child is small, is less than 8 standard, better avoid going to school, because he might catch infection not from bus driver, auto rickshaw driver, from the teacher, or from anybody. And then, as you know,
corona is not very serious in the children, but he will carry back home, and उसके घर में यदि दादा दादी नाना नानी होंगे तो उनको सीरियस हो सकता है। और जिसके पिताजी या उनको डायबिटीज है, अस्थमा है, दमा है, हार्ट डिसीज है, बाईपास किया है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा चांसेस। तो मुझे लगता है मैं एक ही बोलूंगा पेरेंट को, इफ यू आर नॉट वेरी फसी अबाउट एजुकेशन and you are more worried about the health of the children, try not to send them to school till April, till we get vaccinated at least, health worker, बाद में 50 plus, then normal population, at least till April, maybe next year भेजो। now 9-10 which is a very important career, उसमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, डबल मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना, और आँख को, नाक को, मुंह को हाथ नहीं लगाना, 3 चीजें यदि किया, and they keep on maintaining distance, maintaining hygiene and this thing. So I think then they also one thing I will say, that all children should be immunized with influenza vaccine, flu vaccine, which is according to northern hemisphere. That is one thing, and pneumococcal vaccine, which is important. In addition to them, they must have received MR vaccine, which is government and that. If they have got BCG, MR vaccine, influenza vaccine, and pneumococcal, then not protection from from corona, but from other complications which are there, they will be protected. This is what take home message. Over to Anu sir. Yes, sir. These all vaccine, MR vaccine, pneumococcal vaccine, and flu vaccine is especially very, very, very important for 50 year and plus people in the family. आप जितने भी एडल्ट हैं 50 साल से ऊपर खासकर, या जो जिन्हें डायबिटीज है या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, वो सभी लोग फैमिली के इन वैक्सीन को जरूर लगाएं। सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप अपने बच्चों को फ्लू का वैक्सीन हर साल जरूर लगवाएं, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाएं। न्यूमोकोकल 13 वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, आप जरूर लगवाएं अपने बच्चों को। और MR वैक्सीन, MMR वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे कि सर ने बताया कि अगर कोरोना होता भी है तो उसके साथ जो कोमॉर्बिडिटी है, 30% केसेस में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो बचे रहेंगे। और उसके अलावा भी फ्लू वैक्सीन लगवा के आप देखेंगे कि जो कफ कोल्ड जनरली आपके बच्चे को होता रहता है, एक साल में कम से कम 20-30% कम होगा। तो ये बड़ी ही इफेक्टिव वैक्सीन है। आपने अगर अपने बच्चों को नहीं लगवाए हैं तो जरूर लगवाएं उसको। एक्चुअली ये आंसर वो सोनाली रामटेकर का जो था क्वेश्चन, उसमें आंसर आ गया। वो बच्चे को जो फीवर कफ कोल्ड हो रहा, उसने यदि नहीं लगाऊंगा फ्लू वैक्सीन तो लगाइए, न्यूमोकोकल वैक्सीन तो। और मैं बोलूंगा जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी नाना नानू 50 साल के ऊपर, उनको सबको एक डोज फ्लू वैक्सीन और एक डोज कोरोना 13 या अभी 10 भी आ गया है, 10 इज मोर सीरम इंस्टीट्यूट का, वो अच्छा है, वो लगाना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी शुड टेक दैट। आई हैव टेकन, अनुसर ने लिया, हमारे पिताजी माताजी को लगाया, फादर सबको लगा दिया हमने। कोरोना के लिए अभी हम हेल्थ वर्कर, तो हमको एक डोज लग गया, अभी सेकंड डोज लगेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज। Yes, sir. So much, Dr. Uday, for this information. Sir, though it is not directly to fever, but since we have raised the topic of vaccine, many times we miss out the vaccine. And then is it safe to give maybe when we realize that the vaccine has been missed out? Yeah. You see, when if you have not taken vaccines, about flu vaccine last June, July, you should take before rainy season usually. But then if you are not taken last year, you can take now this year. That is about flu vaccine. Pneumococcal vaccine, if you have not taken, you can take it this month, February, March, April. So even if you have missed, it doesn't mean that you don't feel guilty. Vaccine can be taken anytime. Only vaccine who has got पीरियडिक, लाइक पोलियो ट्रिपल तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में लेना पड़ता। वहां पर पहला डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज होता। वो भी आजकल ऐसा बोला है कि फर्स्ट डोज इज फर्स्ट डोज, सेकंड डोज मिस आउट किया तो भी सेकंड डोज लेना, और थर्ड डोज यू कैन टेक अप टू 1 ईयर। तो आजकल थोड़ा थ्योरी बदल गए। मिस आउट वैक्सीन शुड नॉट बी टेकन एज गिल्टी, बट यू कैन रिपीट यू कैन टेक द नेक्स्ट डोज whenever you feel, whenever you are alert. You should be alert. You should never miss the dose. But if you are not taken, yeah. So the platform itself is designed in a way. I'm the best mom. Today, with spending nearly 45 minutes of your interaction with Dr. Anuj Rastogi and this slide, we all are so well informed. Many times we get panic without knowing the actual reason, and we start treating the fever. Whereas
it is today proved that we should be treating the symptom, the actual associated discomfort, which is more important to figure out. Now, when there is a fever, we need to reach to the doctor at the earliest possible, just to understand whether we are not losing time for something very serious. So let us not be doctor by ourselves or with the dependency on the social media, or maybe with the wrong advice. This is where we come in. I'm the Best Mom is a platform where we will be bringing a lot of initiative. As Dr. Anuj Rastogi had just said, the next session is going to be more on the cough and cold and flu with Dr. Subramania NK, who is one of the repute in the country. And we are looking forward for a beautiful session on the coming Thursday. Now, this is the platform where not only we bring innovative way of seeing the children with the recipes to food, nutrition. We also believe when we are raising a child, it is very important to understand their emotions as well. So as a initiative, we have already have many video presentation, and some of the today we have received a couple of questions like they have missed out the previous session. So it is very much available on the website itself and in our YouTube channel. So we have covered many topics: attention to impulsiveness, management of child and parents for the stress, hyperactivity, then how to spread joy and happiness during the childhood, then expectations. There are a lot of emotions we are also touching upon, apart from the basic thing which we should be knowing. Dr. Anuj has already started interacting and inviting the experts, and sometime being a neonatal pediatrician, and when he interacts with another expert, we get to know a lot of insight which probably we are missing out as parent. So please do visit to our website and do attend the Thursday and other day session. We will be connecting with you all with email and SMS, and with all our initiative. Thank you, Dr. Vadankar, today. It was absolutely honor to have you. And Dr. Anuj Rastogi, sir, over to you. Well, one thing I would like to say before Anuj, I'm grateful to you, Tripathi, that I was introduced to Anuj, a hidden diamond, we can say, in our pediatric. I was not aware of his dedication for the parent, for the community. I must salute him in front of all parents. He is not interested in his practice. He is interested in the welfare of parents and children throughout India, not only in his city. So, for which, as a past national president of IIP and as a executive director of Commonwealth, I must admire the dedication, selfless effort to serve to the country's children and parents, for which I think he deserves all the applause. Thank you, sir. And thank you, Anuj. सर मैं एक पिक्चर भी बनाता हूँ बच्चों के लिए, जय जी तारा के नाम से, जो सभी हाँ, मैं देखा हुआ, वो भी बोलना भूल गया मैं. यस सर, वो मॉरल साइंस पे आधारित पिक्चरें हैं और बच्चों को बहुत प्रभावित करती हैं और बहुत से बच्चे उससे बहुत अच्छी बातें सीखते हैं. Thank you, I would like to share that with my parents and my people in pediatric IIP platform and Commonwealth platform. Yes sir, thank you sir, thank you sir, आपने इतना टाइम दिया हमें और नहीं, अरे मुझे भी सीखने को मिला. नमस्कार सर, thank you. Thank you so much, sir. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Bye.